हेलो एस्पिरेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजयम विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube, Facebook, Instagram, Telegram ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है जी, तो ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9111500017 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸੈਟ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो चुके हैं जी। ठीक है, इन्हों के अंदर कोई भी डाउट है तो तुसी मेरे तो क्लीयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट ने ये सैशन नहीं देखे वो देख सकते हैं। दूजा जी अपना कंपलैक्स नंबर हो चुके। तीजा टॉपिक सैट जो जी अपना चल रहा है। देखो सैट ते रिलेशन एंड फंक्शन ना इकट्ठे टॉपिक कराने वाले हैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੀਪੀਟੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਆਏ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਸੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਸੈਟ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनफिमम ते सुप्रीमम। ये तीन चार चीज़ां जी अपनी डिस्कस करने वाले रह गए सैट के अंदर वो आप डिस्कस करांगे। नाले जे जी कुछ आप थोड़े बहुत जे लगभग 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। फिर आप सैट का टॉपिक के नाल रिलेटेड जो जी रिलेशन नाल रिलेटेड काम है वो करांगे ते रिलेशन करके फिर आप पूरा सैट एंड रिलेशन दे MCQ करांगे, फिर नवा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो एवं ना सोचो कि हाँ जी सानू आज सिर्फ इन्ना करा के मैडम ने छड़ता क्वेश्चन बहुत घट कराया। देयर इज नथिंग लाइक दिस। ओके, तो आप जो कंप्लीट टॉपिक सैट ते रिलेशन फंक्शन है ना वो कंबाइन करके करावांगे। मैं तुहानू अज आप सैट दे कंप्लीट करके कुछ को MCQ करा दांगी। उसके बाद रिलेशन के बारे पढ़ के फिर उसके बाद एक MCQ का सैशन ला के फिर आप नवा टॉपिक स्टार्ट करांगे। हाँ जी, तो वह भी दस दिओ कि अगे इस तो बाद तुसीं किहड़ा नवा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो पहला। ठीक है जी, तुहाडी डिमांड दस दिओ कि पहला मैडम आ टॉपिक करा दो जिहड़ा तुहानू ज़्यादा औखा लगदा है, जिहदे अंदर तुहानू ज़्यादा डाउट नहीं, वो आप पहला कर लांगे। हाँ जी, तो वधदे हां जी आप अपने अज दे सैशन वाल। हाँ जी, आप सैट बारे की कुछ पढ़ लिया सी। आप देख लिया सी कि सैट हुंदा की है, सैट दी डेफिनेशन देख ली सी, सैट नू रिप्रजेंट करने दे तरीके देख ले सी। ठीक है जी, उस तो इलावा आप सैट दी टाइप्स देख लिया सी, फिर सैट दी प्रॉपर्टीज देख लिया सी जी, फिर आप लाज देख ले सी किहड़े-किहड़े ला इस ते एप्लीकेबल ने, कुछ रूल्स देख ले सी जिहड़े कि मैं तुहानू कहा सी रूल्स एंड फार्मूला मैं कहा सी याद नहीं करने, बस मैं तुहानू लिखा दिते एवें। ठीक है जी, उसके बाद आप आए सी जी वैन डायग्राम ते। आप पेपर के अंदर सैट का क्वेश्चन करना ही वैन डायग्राम नाल है। ठीक है जी, अस तुहानू समझावांगी दिखावांगी कि मैं वैन डायग्राम नाल आप क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, हाँ जी, तो अज आप डिस्कस करते हैं। सब तो पहला डिस्कस करें कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की होंगी है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। अज दे सैशन आप विदाउट पीपीटी करांगे। ओके, नैक्सट सैशन फिर तो आप जो आप रिलेशन वाला लाँगे सेम वधिया तरह पीपीटी बना के विद विजुअलाइजेशन तुहानू जिहड़ा जी ट्रांजेक्शन वगैरह ला के वधिया तरह नाल आप करांगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट की होंदी है सब तो पहला आप डिस्कस करते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अपने कोई भी दो सैट ने A ते B। ठीक है जी, A ते B कोई दो सैट ने नॉन एम्प्टी सैट ने, मान लेने A के अंदर कुछ एलीमेंट है, ठीक है जी, तो B के अंदर भी कुछ एलीमेंट है नहीं। तो इन्हां दी कार्टेशियन प्रोडक्ट नूं डिनोट किया जाता है जी A क्रॉस B नाल।
A क्रॉस B ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ A क्रॉस B ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ A ਤੇ B ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਅਰ A ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ A ਸੈਟ ਨੂੰ ਤੇ B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ B ਸੈਟ ਨੂੰ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ A B ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ठीक है जी A क्रॉस B ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ A ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਜੀ B ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ A 1 2 3 B ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P Q ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ A क्रॉस B ਕੀ ਹੋਏਗਾ A क्रॉस B ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਣਗੇ ਜੀ A क्रॉस B ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ A ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ 1 ਦੇ ਨਾਲ P ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ Q ਫਿਰ A ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2P 2Q ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 3P 3Q ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤੀ नहीं करनी कि P ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ A क्रॉस B ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ A क्रॉस B ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ A ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ B ਜਿਹੜਾ ਜੀ B ਸੈਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ A क्रॉस B ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ BA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ BA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆ BA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ नॉर्मली B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ A ਇਕੁਅਲ B ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ नहीं होंगे कि आप कह दिए ए बी ते सी डी के बराबर नहीं होएगा इसी तरह ऑर्डर पेयर के एक गल हो रहा रखो कि ए बी जेड़ा है जी सी डी के बराबर कदों होएगा ए बी पेयर सी डी के बराबर कदों होएगा और इफ एंड ओनली इफ उदों होएगा जे ए सी के बराबर है ते बी डी के बराबर है अदरवाइज आप भी बराबर नहीं होंगे ठीक है जी इन्नी गल समझ आ गई हाँ जी तो हुण मेरी गल दसो मैं तुहानूं कहा कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो दसो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है यस और नो कि ए कम्यूटेटिव है या नहीं है तो याद रखियो जी कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे जी A B टाइप के ते B क्रॉस A के अंदर किहड़े तरह के होंगे जी B A टाइप के ते जे ये दोनों चीजें आपस के अंदर बराबर नहीं ने तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव किवें हो जाएगी तो याद रखियो A क्रॉस B बराबर नहीं हुंदा जी B क्रॉस A दे आ चीज याद रखियो कि A क्रॉस B जिहड़ा जी B क्रॉस A दे कदे भी बराबर नहीं हुंदा हाँ जी इस दे बाद जो तुहानूं पूछ लिया जावे नंबर ऑफ एलिमेंट किन्ने ने प्रोडक्ट के अंदर A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किन्ने ने तो देखो एग्जांपल तो तुहानूं मैं प्रूव क्लियर कर दिंदी हां एग्जांपल तो क्लियर कर दिंदी हां A के अंदर किन्ने एलिमेंट्स इत्थे 3 B के अंदर किन्ने सी 2 ते इन्हां दी प्रोडक्ट के अंदर किन्ने बने जी 6 बने ना मतलब इन्हां दी मल्टीप्लाई बन रही है इन्हां दी मल्टीप्लाई बन रही है तो याद रखियो जे नंबर ऑफ पेयर पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेन क्रॉस के अंदर तो किस दे बराबर होंगे फॉर एग्जांपल जे A के अंदर नंबर ऑफ A M है ते नंबर ऑफ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n है तो नंबर ऑफ A क्रॉस B किस दे बराबर होएगा जी M N दे बराबर होएगा याद रखियो M N दे बराबर होएगा ठीक है जी ते जे पूछ लेने दे किन्ने सबसेट किन्ने होंगे तो इस दे सबसेट किन्ने बनणगे जी 2 रेज़ टू पावर M N बनणगे किन्ने बनणगे जी 2 रेज़ टू पावर M N इन्हां दे सबसेट भी बनणगे तो ये चीज़ां तुहानूं पता होणीआं चाहीदियां ने हाँ जी इस तो बाद कुछ जो इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ने कार्टेशियन प्रोडक्ट दे तुहानूं थोड़े बहुत पता होने चाहिए ने नॉट सो इंपोर्टेंट बट नॉलेज के अंदर होने चाहिए फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल कोई 3 सेट है P Q R तो P दी कार्टेशियन प्रोडक्ट Q यूनियन R नाल करोगे तो किस दे बराबर होएगी जी P क्रॉस Q यूनियन P क्रॉस R डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नूं फॉलो कर रहे हैं इत्थे आ सिमिलरली जे इंटरसेक्शन के अंदर कह देना तां भी सेम ही होएगा जी
ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ P क्रॉस Q ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ P क्रॉस R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ P क्रॉस Q माइनस P क्रॉस R। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਜੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਉਂਡਸ ਆਫ ਅ ਸੈਟ, ਕਿ ਸੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਸ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, मतलब कि इस तो बाहर अपना कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस तो बाहर साडा करनी है, इत्थे साडी खत्म हो गया, लिमिट आ गई साडी, इस तो बाहर असी नहीं है गया। ठीक है ना। उसी तरह बाउंड्स ऑफ सैट की होंदे ने कि सैट जिहड़ा जी इस वैल्यू ते इस वैल्यू तो बाहर नहीं जा रहा, उन्होंने की कहंदे आ बाउंड्स ऑफ सैट कहंदे आ। की कहंदे आ जी बाउंड्स ऑफ सैट कहा जांदा उन्हां नूं कि हाँ जी तुहाडा सैट जिहड़ा जी इस चीज़ तो बाहर नहीं हो रहा है, तो ओके जी वो अपने सैट दे बाउंड्स हुंदे ने। की हुंदे ने बाउंड्स हुंदे ने। तो बाउंड्स जिहड़े जी अपने कोल दो तरह दे हुंदे ने, एक हुंदा अपर बाउंड, ठीक है जी, दूजा हुंदा लोअर बाउंड। सुनिया होएगा अपर बाउंड ते लोअर बाउंड बारे, पर तुहानूं समझा दिंदे आ। एक अपर बाउंड हुंदा, एक लोअर बाउंड हुंदा। अपर बाउंड की हुंदा है, कोई भी सैट है, मान लो ए, तुहाडे कोल कोई सैट है ए, ठीक है जी, कोई भी सेट है जिसका रियल नंबर का मान लेना सेट है, तो की है जी कोई नंबर P है, उसका अपर बाउंड कदों कहांगे, अपर बाउंड कदों कहांगे कि P इज अपर बाउंड ऑफ सेट A इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू P। की है लिखी देनी है, चलो मैं प्रॉपर लिख देनी। हाँ जी, पहला अपर बाउंड की डेफिनेशन लिख लो। अपर बाउंड की कहता है, कहता लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी सेट है एनी सबसेट ऑफ रियल, देन P is called upper bound, P is called upper bound of set A if all elements, अपर बाउंड की गल हो रही है, if all elements of A is less than or equal to K, P equal to P, कि A जेड़े है A दे सारे एलिमेंट P तो लेस देन ते इक्वल टू होंगे, तां P की होएगा जी उसका अपर बाउंड होएगा, अपर बाउंड होएगा। ठीक है जी, उसनूं की कहांगे अपर बाउंड कहांगे। इत्थे ए दा की मतलब है, ए बिलोंग कर रहा है सैट ए नूं। कहण दा मतलब की है कि अजिही लिमिट, अजिहे नंबर नूं आपां एक अजिहे नंबर नूं आपां अपर बाउंड कहांगे जिस तो वो सैट दे सारे नंबर छोटे ने या उसदे बराबर ने, या तो उस तो लेस ने या उसदे इक्वल ने, या तो लेस ने या फिर की है जी इक्वल ने, तो उसनूं आपां की कहांगे, उसनूं की कहांगे जी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। जे एक अपर बाउंड है ना, जे किसी सेट का एक अपर बाउंड है, एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सेट के इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। किवें, फॉर एग्जांपल मैं कोई सेट लिया 1 to 100 लिया, हुण इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया कि 100 इसका अपर बाउंड है, ठीक है, 100 तो बाहर इसकी वैल्यू नहीं जा रही, पर इसका 101 भी तो इसका अपर बाउंड है, 102 भी है, 200 भी इसका अपर बाउंड है, 999 100 तो वड्डा कोई भी नंबर ले लो, वो सारे इसके अपर बाउंड होंगे ना। तो याद रखियो, जो एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, जो एक अपर बाउंड आ गया तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। ठीक है जी। एक गल होर, जरूरी नहीं है कि हर एक सैट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है, नैसेसरी नहीं है कि हर एक सैट का अपर बाउंड होवे।
नॉट नैसेसरी कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करे ही करेगा। यह भी गल कोई जरूरी नहीं है कि हरेक सैट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। कुछ सैट्स के अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं भी करते, कुछ सैट अजे होंगे ने जिन्हों का अपर बाउंड हुंदा ही नहीं। तो असीं जी अपर बाउंड उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन से कमेंट कर जाओ, कल रिलेशन वाले चैप्टर के अंदर फिर तो समझा देंगे। जो भी चीज़ अज के लैक्चर के अंदर नहीं समझ आ रही ना उस पूछ लियो, क्योंकि अज के लैक्चर भावें छोटा है भावें पीपीटी विदाउट वाला है, पर इस दे अंदरों पिछले 2-3 सालों के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तब बी केयरफुल अबाउट दिस सेशन। हाँ जी, लोअर बाउंड हुण गल करते हैं लोअर बाउंड की। सॉरी, हाँ जी, हुण देखते हैं लोअर बाउंड की हुंदा है। वेट, हाँ जी, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की कहते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो कि लेट ए बी एनी सबसेट, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर रियल नंबर का कोई भी सबसेट है, ठीक है। तो ए रियल नंबर आप की कहते हैं, कोई रियल नंबर है, ए रियल नंबर क्यों ले लेने थे, ए रियल नंबर पी लिया सर, क्यों ले लेना, ए रियल नंबर क्यों इज सेट टू बी लोअर बाउंड, सेट टू बी लोअर बाउंड कदों लोअर बाउंड कहांगे, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, केस तो या तो वड्डे होंगे या फिर इक्वल होंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों, हमने पहला आप किवें लिखिया सी कि एस दे सारे एलिमेंट क्यू तो वड्डे या बराबर होंगे। आई चीज लिखांगे ना, ए दे सारे एलिमेंट क्यू तो वड्डे होंगे तो उसमें की कहांगे लोअर बाउंड। कि फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल सेट है 0 1 2, ठीक है, कितने भी चारे तो इसका लोअर बाउंड क्या है, इस दे सारे एलिमेंट 0 तो बराबर ने, आ वाला 0 के बराबर है या फिर इस तो वड्डे ने, तो 0 की है इसका एक लोअर बाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसका की बन जाएगा लोअर बाउंड कि इस तो थले तो इसकी वैल्यू जानी ही नहीं, वो नंबर जिस तो थले इसकी वैल्यू नहीं जाती उसनूं की कहते हैं हाँ कि वो उसका लोअर बाउंड हैगा है, ठीक है जी। उसका की बनता अपने कोल लोअर बाउंड बन जाता है, ठीक है जी। लोअर बाउंड समझ आ गया होगा कि लोअर बाउंड की हुंदा है। हाँ जी, फिर उसी तरह याद रखियो जी एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जे एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना, एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो इट मीनस उसदे इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते ने, उसदे इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है जी। दूजी गल, जरूरी नहीं है कि हर एक सैट का लोअर बाउंड होवे, जरूरी नहीं है कि हर एक सैट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट कर भी सकता है ते नहीं भी कर सकता, ठीक है जी। एग्जिस्ट कर भी सकता है ते नहीं भी कर सकता। इस तो बाद याद रखियो जेड़ा अपर बाउंड ते लोअर बाउंड है, अपर बाउंड ते लोअर बाउंड है, ठीक है जी। चलो मैं लिखता, एवं नहीं लिखा जाता पर मैं लिखता छोड़ दें, अपर बाउंड ते लोअर बाउंड है ना, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि सेट के अंदर एग्जिस्ट करन, हो सकता है सेट के अंदर एग्जिस्ट ना करन, जरूरी नहीं है कि किसी भी सेट के जेडे बाउंड्स है, जेडे उसके बाउंड ने लोअर बाउंड है ते अपर बाउंड है वो उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करन, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी। जेडे सेट का लोअर बाउंड अते अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जेडे सेट का लोअर बाउंड ते अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसनूं आपां की कहंदे हैं जी, उसनूं बाउंडेड सेट कहंदे हैं, बाउंडेड सेट। जे दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो बाउंडेड सेट कहते हैं, जे लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जे लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो की कहते हैं बाउंडेड बिलो कहते हैं, जे अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड अबव कहते हैं, जे लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो कहते हैं, ठीक है जी। तो जे अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है फिर की कहते हैं जी बाउंडेड अबव, तो जे दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर सैट नूं की कहते हैं जी कि सैट साडा बाउंडेड है, कि जी सैट साडा की है जी बाउंडेड है। सॉरी,
हाँ जी, तो इन्ना तुहानू समझ आ गया होगा अपर बाउंड लोअर बाउंड बारे जे क्लीयर हो गया तो प्लीज थम्स अप दा साइन जरूर जेड़ा तुसी दे दो कि हाँ जी सानू मैडम इन्ना समझ आ गया। ते जे नहीं समझ आया तो की करना है जी, डाउट नू कमेंट सेक्शन अंदर कमेंट करके चले जाओ कि मैम आ सानू कल दोबारा तो समझा दियो, सानू इत्थे समझ नहीं आया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जी पिछले 2 साल तो पेपर के अंदर आ रही है, सुप्रीमम ते इनफीमम। सुप्रीमम ते इनफीमम की हुंदा है, ठीक है जी। उवें तो आप सुप्रीमम इनफीमम के बारे ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, पर तो मैं इत्थे भी अपने पेपर के अंदर आ टॉपिक उत्थों मान लो तुसीं लिया गया है। तो सुप्रीमम ते इनफीमम की हुंदा है, लेट अस डिस्कस अबाउट सुप्रीमम। सुप्रीमम की हुंदा है जी, याद रखियो सुप्रीमम द स्मॉलेस्ट, सब तो छोटा। मैं तुहानू हुणे की किहा सी कि अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, तो द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड का सब तो छोटा नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए सेट कॉल्ड द सुप्रीमम। उसनू की कहते हैं जी, सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है जी। कि जेड़ा अपर बाउंड का स्मॉलेस्ट नंबर है, सब तो छोटा नंबर अपर बाउंड के अंदर, उसनू की कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। तो इसनू आपां एवें लिखदे हां सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है जी, सुप्रीमम ऑफ ए। या फिर सुप्रीमम का दूजा नाम है लीस्ट अपर बाउंड। इस दे नाम तो ही पता लग जाएगा कि अपर बाउंड का लीस्ट, सब तो छोटा अपर बाउंड का लीस्ट, उसनू की कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं, सुप्रीमम कहा जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अपने को सैट है, आप सैट लेंदे हां, ए सैट है तुहाडे कोल 1 2 अप टू 10 तक, तो इसका सुप्रीमम की होगा। पहला तो इसके अपर बाउंड दसो की होंगे, 10 इसका अपर बाउंड है, 11 इसका अपर बाउंड है, 12 इसका अपर बाउंड है, 13 अप टू 100 इसके अपर बाउंड नहीं है ना। तो उन्हें पूछा सुप्रीमम की होगा। सुप्रीमम में की कह सी कि अपर बाउंड के अंदर सब तो छोटा नंबर देखना, अपर बाउंड का सब तो छोटा नंबर की है 10 है, तो इसका सुप्रीमम की आ गया, या फिर लीस्ट अपर बाउंड अपने को की आ गया जी 10 आ गया। तो इस सेट का सुप्रीमम कितना आ गया जी 10 आ गया। समझ आ गई गल, सुप्रीमम इस सेट का कितना आ गया जी 10 आ गया अपने को, ठीक है जी। इस सेट का सुप्रीमम तुहाडे कोल कितना आ गया जी, इस सेट का सुप्रीमम की है जी साडे कोल 10 आ गया। हाँ जी, इस तो बाद हुंदा है सुप्रीमम के बाद आंदा अपने कोल इनफीमम। जे आ ना समझ आए ना मेरे दोबारा जरूर पूछ लियो, क्योंकि पेपर के अंदर जरूर क्वेश्चन आना है। इनफीमम, हुण इनफीमम की हुंदा है, व्हाट डू यू मीन बाय इनफीमम? उस दे उल्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ, और लिस्ट से आके जी द ग्रेटेस्ट ऑफ lower bounds, the greatest of all lower bound of a set is called infimum। उसनू की कहते हैं जी आपां इनफीमम कहते हाँ, ठीक है जी। उसनू की कहा जाता है इनफीमम कहा जाता है। तो इसनू किवें डिनोट करते हैं, इसनू इनफीमम ऑफ, जे ए सेट दा इनफीमम ऑफ है इस नाल डिनोट करते हैं, या फिर इसनू आपां कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मैं तुहानू दस्सिया सी कि एक सेट दे लोअर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं ना, जिवें कि अपने कोल सेट है 1 2 अप टू 100 कुछ भी है, तो इसका लोअर बाउंड की बन रहा है 1 बन रहा है, 0 भी बन रहा है, -1 भी बन रहा है, -2 भी बन रहा है, अप टू 100 इधर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर जिहड़े जी इसके अपने कोल जिहड़े है की बन रहे ने लोअर बाउंड बन रहे हैं। पर लोअर बाउंड के अंदर सब तो बड़ा कौन है? सब तो बड़ा कौन है जी 1 है। लोअर बाउंड के अंदर सब तो बड़ा कौन अपने कोल 1 है, तो 1 इसका की आ गया जी इनफीमम आ गया। इनफीमम ऑफ ए कितना आ गया जी 1 आ गया, या फिर कहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। एक गल याद रखियो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड यूनीक हुंदे ने, ए इनफाइनाइट नहीं हुंदे, यूनीक हुंदे ने, ठीक है जी। की हुंदे ने ये अपने कोल यूनीक होंगे हैं। तो सुप्रीमम ते इनफीमम उम्मीद करते हैं तुहानू समझ आ गया होगा, ठीक है जी। हाँ जी, इनफीमम की हुंदा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ते सुप्रीमम की हुंदा है जे लीस्ट अपर बाउंड अपने कोल सुप्रीमम हुंदा है।
बाद तुहानूं मैं दस दिता कि इनफिमम भी यूनीक हुंदा है, सुप्रीमम भी यूनीक हुंदा है। ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, हाँ जी, कोई भी सैट ए है, जनरल जी गल्लां ने, कोई सैट ए है, कहंदा सैट ए दे अंदर जे सैट ए दे अंदर स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है, जे सैट ए दा स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ओ ही उसदा सुप्रीमम हुई, ओ सॉरी इनफिमम होएगा। ठीक है। इसी तरह जे किसी सैट ए दा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओ उसदा की होएगा जी, ओ उसदा सुप्रीमम होएगा। ठीक है जी। ओ उसदा की होएगा जी, सुप्रीमम होएगा। हाँ जी। हुण आपां अपर बाउंड लोअर बाउंड बारे पढ़ लिया। हुण आपां गल करदे हां ओपन सैट ते क्लोज सैट बारे कि ओपन सैट किहड़ा हुंदा है ते क्लोज सैट किहड़ा हुंदा है। ओपन सैट ते क्लोज सैट दे बारे पढ़न तो पहला तुहानूं ओपन इंटरवल ते क्लोज इंटरवल बारे पता होना चाहिए। ओपन इंटरवल ते क्लोज इंटरवल। देखो जी ओपन इंटरवल की हुंदा है, आ कोई रियल लाइन है। ठीक है। इस ते दो आपां इंटरवल ले लिया ए टू बी। ठीक है जी। तो ए तो बी दे विचकार दे जे आपां नंबर्स लेने हैं, ना ए लिया ना बी लिया, ए ते बी नूं छड्ड के जिस दे विचकार दे इत्थों कोई भी आपां नंबर पिक करना है तो वो इसदा ओपन इंटरवल होएगा। इस नूं आपां इस ब्रैकेट नाल शो करदे हां। कहण दा मतलब की है कि ए जिहड़ा जी लेस दैन एक्स इज लेस दैन बी, कि ए बी दे उसदी वैल्यूज नहीं ने पर इन्हां दे विचकार वैल्यू ने ते इन्हां दी नेबरहुड वाली वैल्यूज भी हैगियां ने, पर ए ते बी खुद एग्जिस्ट नहीं करदे, तो उस नूं की कहंदे आ ओपन इंटरवल कहंदे आ। इसी तरह जे ए ते बी नूं आपां अंदर एग्जिस्ट करा दईए, इस ब्रैकेट नाल शो कर दईए, तो वो हो जांदा जी क्लोज इंटरवल। ते ओहदा मतलब की है कि ए इज लेस दैन इक्वल टू भी हो सकता है ते बी दे बराबर भी हो सकता है। जे एंट्रीज इंक्लूड कर लिया तो क्लोज्ड हो जाएगा, जे नहीं कीतियां तो ओपन हो जाएगा। कई बार अपने को इंटरवल एवें भी हुंदा है, इनफिनिट नाल हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है। ताकि ए तो इंक्लूड करना है पर इनफिनिटी इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है। आओ इनू बोलते हैं आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी। तो इंटरवल बारे तुहानूं पता ही होएगा, तो सिंपल जी गल है। तो हुण आपां गल करते हैं सैट दे बारे कि ओपन सैट की हुंदा है। ठीक है जी। ओपन सैट की हुंदा है। लेट अस पहला डेफिनेशन लिख लो जी ओपन सैट दी। सिर्फ इन्हां दी डेफिनेशन बारे तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए, बाकी पेपर दे इन्हां नाल रिलेटेड कुछ इन्ना पूछिया नहीं जांदा। मेन इनफिमम ते सुप्रीमम बारे पूछा जाता है। काउंटेबल ते अनकाउंटेबल सब सैट जिहड़े जी वो मैं तुहानूं दसने उन्हां बारे भी पूछ सकते हैं। बाकी उस तो बाद आपां इनफिमम क्वेश्चन ही करांगे। हाँ जी। ओपन सैट की हुंदा है, कोई ए सैट है, ए सैट आपां ए नहीं लेंदे, आपां सैट ले लेंदे ए सैट पी। ए सैट पी है जिहड़ा कि सबसेट है रियल नंबर दे सैट दा। ठीक है जी। उस नूं आपां की है, इस नूं आपां ओपन सैट कदों कहांगे, इज कॉल्ड ओपन सैट। इस नूं ओपन सैट कदों कहा जाएगा, कदों कहा जाएगा इफ कदों कहा जाएगा कि जेकर हरेक इसदा एलिमेंट ईच पी बिलोंग टू पी, कि इसदा हरेक एलिमेंट जिहड़ा जी हरेक एलिमेंट लई एक ओपन इंटरवल इस तरह एग्जिस्ट करे। पी बिलोंग टू पी देयर एग्जिस्ट उत्थे एक एग्जिस्ट करना चाहिए है ओपन इंटरवल। देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट, किस तरीके नाल कि जिहड़ा ए बिलोंग करे उस आई नूं ते ओ सबसेट होवे ए दा। एक इंटरवल कोई भी सैट नूं ओपन सैट उदों कहंदे हां कि जदों उस सैट दे अंदर जदों उस सैट दे एलीमेंट नाल रिलेटेड एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा तां कहांगे। ठीक है जी। रियल नंबर दा जिहड़ा सैट हुंदा है ना ओपन सैट हुंदा है। रियल नंबर दा सैट की हुंदा जी ओपन सैट हुंदा है, पर रेशनल नंबर दा सैट ओपन सैट नहीं हुंदा। रेशनल नंबर दा सैट जिहड़ा जी ओपन सैट नहीं हुंदा, उत्थे इस तरह दा इंटरवल जिहड़ा जी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। इंटीजर की गल करिए वो भी ओपन सैट नहीं हुंदा। इंटीजर दा सैट भी जिहड़ा जी अपने कोल ओपन सैट नहीं हुंदा है। ठीक है। आप पता लग गया होगा की कह रहे हैं किसी भी सैट नूं ओपन सैट कदों कहांगे कि उस दे अंदर एक हरेक वैल्यू लई हरेक सैट लई उहदे हरेक एलीमेंट लई उस सैट दे हरेक एलीमेंट लई एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट इस तरह का करना चाहिए। एक ओपन इंटरवल होना चाहिए जिहड़ा उस सैट का सबसैट होवे, जिहड़ा उस सैट का की होवे जी सबसैट बनता होवे।
फिर आप कहांगे कि हाँ जी आ सैट की है ओपन सैट है। जे उसका सबसैट बनने वाला कोई इंटरवल नहीं मिल रहा अपन उस एलीमेंट नाल बिलोंग करते हुए, उस तरह का कोई इंटरवल नहीं मिल रहा है, तो वो सैट अपने को ओपन सैट नहीं होएगा, उसनों आप ओपन सैट कदे भी नहीं कहांगे। ठीक है जी। हाँ जी, नैक्सट है जी अपने को क्लोज सैट। उस तो उलट आ जाओ। क्लोज सैट की कहता है कोई सैट है, ए सैट है जिहड़ा कि सबसेट है जी रियल नंबर दा, उसनों क्लोज्ड कदों कहांगे जे उसका कंप्लीमेंट ओपन सेट होएगा, इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन सेट। बस यदि डेफिनेशन याद रख लो, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि ओपन सेट क्लोज सेट बारे पेपर अंदर नहीं पूछते। जे इसका कंप्लीमेंट क्लोज सेट है तो डेफिनेशन पता ना, तुम आपे दस ही दोगे सेट देखिए कि क्लोज्ड है कि ओपन है। जे अपने कोल उस सेट का कंप्लीमेंट जे ओपन सेट है तो वो सेट की होगा, एक क्लोज सेट होएगा। ठीक है जी, उसनों की कहांगे जी क्लोज सेट कहांगे। याद रखियो रियल नंबर का सेट जिहड़ा जी क्लोज्ड भी हुंदा है। रियल नंबर का सेट की है जी क्लोज सेट हुंदा है। 5 एम्प्टी सेट जिहड़ा जी क्लोज सेट हुंदा है। एम्प्टी सेट भी क्या जी क्लोज्ड सेट हुंदा है। ठीक है जी। हाँ जी, या की है जी एम्प्टी सेट भी क्या है क्लोज सेट हुंदा है। रेशनल नंबर का सेट है जी, याद रखियो रेशनल नंबर का सेट, ये सिर्फ तुम ना गल्लां मेन याद रख लियो जी मैं लिखवा रही हूँ। रेशनल नंबर का सेट जिहड़ा जी नाइदर ओपन नॉर क्लोज हुंदा है, ना ही तो ओपन हुंदा ना ही क्लोज हुंदा। हुण तुसीं मैनूं एक सैट दिन्नी मैं तुहानूं, ए सैट है 1/n है तो n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर है, ओपन है कि क्लोज्ड, कमेंट सेक्शन अंदर कमेंट दसो ओपन है कि क्लोज्ड है। तो देखो जी आ सैट ना ही तो क्लोज्ड है ना ही ओपन है, नाइदर ओपन नॉट क्लोज्ड है जी, ना ही तो ओपन सेट है ना ही क्लोज सेट है। हाँ जी, इस दे बाद आप देखो काउंटेबल ते अनकाउंटेबल सेट बारे पढ़ते हैं। काउंटेबल तो तुहानूं दस दी गिनती दसन की लोड़ ही नहीं कि जिन्ना सैट्स दे एलीमेंट्स नूं काउंट करदे उन्होंने काउंटेबल सेट कहते हैं फाइनाइट के अंदर। पर इनफाइनाइट आप सेट पढ़िया सी, आपां की पढ़िया सी जी इनफाइनाइट सेट पढ़िया सी ना, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट केड़ा हुंदा है जिस दे आपां कहे सी इनफाइनाइट एलीमेंट हुंदे ने। इस दे अंदर अपने कोल दो तरह के सेट बनते हैं, एक बनता है जी काउंटेबल, दूजा बनता है अनकाउंटेबल। किसी सैट नूं काउंटेबल कदों कहांगे, किसी सैट नूं काउंटेबल कदों कहांगे कि या तो वो फॉर एग्जाम्पल हाँ जी कोई सेट है, चलो डेफिनेशन लिखा देने, ए सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबल। A set A is said to be countable if either ਜਾਂ ਤਾਂ A डी नंबरेबल है। डी नंबरेबल की हुंदा है, डी नंबरेबल सेट की हुंदा है कि जे किसी सेट दी 1/1 मैपिंग होवे नैचुरल नंबर दे नाल। ठीक है जी, नैचुरल नंबर दे नाल 1/1 मैपिंग होवे ते ऑन टू होवे तां उस नूं कहंदे आ चीज़ ना तुहानूं जदों मैं रिलेशन करावांगा ना उदों समझ आएगी। ठीक है, जो मैं रिलेशन वाला टॉपिक कराऊंगा ना उदों तुहानूं समझ आएगी डी नंबरेबल की हुंदा है या फिर वो फाइनाइट हुई। चलो फिर तुहानूं काउंटेबल भी मैं उदों ही दसांगी। उन्हें तुहानूं पता होना चाहिए डी नंबरेबल का मतलब की हुंदा है, याद रख लियो किसी सैट नूं डी नंबरेबल सैट उदों कहंदे आ कि उस दी 1/1 मैपिंग होवे, उस दी 1/1 मैपिंग होवे किस लिए नैचुरल नंबर दे सैट लिए, फॉर द सेट ऑफ नैचुरल नंबर ऑन टू दी सैट ए कि उस दे नाल की होवे जी ऑन टू होवे। आ चीज़ां तो आप रिलेशन करांगे ना उदों तुहानूं समझ आ जाऊगी। तो एक बार इवें करदी हां काउंटेबल ते अनकाउंटेबल नूं छड्ड दिंदी हां। ये अपना तुहानूं जदों आपां उस क्वेश्चन करांगे उदों ही समझावांगी, जदों तुहानूं ऑन टू ते 1/1 समझाती ना फिर ही समझ आएगा। कल दे सैशन दे अंदर तुहानूं मैं करा दांगी। ठीक है जी, तो आ सी जी जिहड़ा अपने सैट के अंदर टॉपिक रहिंदा सी, तुहानूं उम्मीद करदी हां समझ आ गया होगा। हुण आपां जिन्ना कुछ अज तक कीता ना उस नाल रिलेटेड थोड़े जी कर लेंदे आ जी क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंदे हां
ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆ ਸੀ शायद 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन से विच वन ऑफ फॉलोइंग नहीं सुप्रीमम, हाँ जी दी सुप्रीमम ऑफ, देखो सुप्रीमम आ चुका है, सुप्रीमम पूछा है दी सुप्रीमम ऑफ सैट दिता होया सी आपां नूं पेपर दे अंदर 1/n, 1/n ते आई था मैं तुहानूं लिखिया सी उत्थे, हुणे पूछया सी ना, मैं हुणे दस्सिया सी 1/n ते n की एक नैचुरल नंबर है, ਇਹਦਾ सुप्रीमम पूछया सी कि 0 होएगा, 1 होएगा, -1 होएगा या 1/2 होएगा। कर दो जी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कि इस दा सुप्रीमम की बनेगा, इस सेट दा सुप्रीमम तुहाडे कोल की बनेगा। जल्दी तो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके दस दो कि इस सेट दा सुप्रीमम की होएगा। ध्यान रखियो सुप्रीमम की हुंदा है लीस्ट अपर बाउंड, सब तो छोटा अपर बाउंड देखना है इसदा की बन रहा है, सब तो छोटा अपर बाउंड आपां चेक करना है कि सेट दा साडे कोल की बन रहा है, वही अपने कोल जी सेट दा सुप्रीमम हो जाएगा, वही सेट दा सुप्रीमम हो जाएगा। इन्ना टाइम लगना ही नहीं सी, आंसर आ जाना चाहिए सी हुणे। देखो जी 1n अपने कोल नेचुरल नंबर है, तो सब तो पहला एलिमेंट की बनेगा 1 बनेगा, फिर 1/2 अप टू सो में जाते रहेंगे ना, है ना। तो इसका सुप्रीमम पूछना है, इसकी वड्डी तो वड्डी वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, सुप्रीमम ਦਾ ਆ ਨਾ ਦੇਖਿਓ कि हाँ जी मैडम ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ इसका सुप्रीमम ਤਾਂ एग्जिस्ट ही नहीं करना, इसका तो अपर बाउंड है ही नहीं। इस चीज़ को अपर बाउंड नहीं समझना कि डैश डैश इनफाइनाइट तक अपर बाउंड का मतलब हाईएस्ट वैल्यू वो पहले नंबर से भी हो सकती है, लास्ट से भी हो सकती है। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 ही रहेगी ना, बाद तो 1 तो छोटी ही जानी है। हाईएस्ट वैल्यू इसकी की है 1 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे इसके अपर बाउंड ने। पर सब तो छोटा अपर बाउंड कौन है, सब तो छोटा अपर बाउंड कौन है, 1 है। तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा जी 1 आएगा, बी थोड़ा इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, जो समझ आ गया ताई थम्स अप करो, अदरवाइज कमेंट के अंदर कह दियो कि मैडम दोबारा समझा दियो। ठीक है, डाउट नहीं रखना, पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन चला जाऊगा, तो पेपर के अंदर 1 नंबर बहुत कीमती है। तो आ क्वेश्चन आया सीधे पिछले पेपर के अंदर सैट नाल रिलेटेड। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन की आया सी सैट नाल रिलेटेड, कहते ए जिहड़ा सैट है x है x² -1 = 0, ओके, ते b है जी x है x² -2x + 1 = 0। देन पूछा कि होया सी इन्होंने पूछा होया सी, अच्छा नीचे ऑप्शन दिते ने, केड़ी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सी जी a इंटरसेक्शन b है, a दे बराबर होएगी। ऑप्शन बी सी जी A यूनियन B है, वो 5 के बराबर होएगी। ऑप्शन सी जी A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर होएगी, ते ऑप्शन डी की सी जी A यूनियन B A के बराबर होएगी। की होएगा जी, कर दो कमेंट जल्दी तो जल्दी, आंसर की आएगा इसका, की आंसर आएगा जी इस क्वेश्चन का। तो देखो जी पहला ए सेट दी अपने को रोस्टर फॉर्म बना लो, x² 1 आ गया तो की बनेगा जी +-1 बनेगा, ठीक है। इसी तरह बी सेट की बन जाएगा जी, आ -2 ते 1 है, 1 तो बी सेट की बन जाएगा जी 1 बनेगा, बी का वैल्यू बन गई 1। हुण देखो इन्हां दोनों दी इंटरसेक्शन ए दे बराबर है, कदे भी नहीं है। इन्हां दोनों दी यूनियन 5 के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। कि इन्हां दी इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, नहीं जी। कि इन्हां दी यूनियन ए दे बराबर है, बिल्कुल सही है। दोनों दी यूनियन कर दो, 1 ते -1 ही बनेगा। ए यूनियन बी की है जी ए दे बराबर है, तो करेक्ट आंसर किया गया जी ऑप्शन नंबर डी आ गई साडे कोल, बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, होर क्वेश्चन केड़ा आया सी जी, थर्ड क्वेश्चन जिहड़ा है 2017 के अंदर आया सी, कहंदा ए सेट दिता होया है, सेट ए है 1 2 3 4 5, ओके जी। ते बी सेट है जी तुहाडे कोल 2 3 6 7। पूछा की है जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। इन्हां दी इंटरसेक्शन अंदर एलिमेंट पूछे हुए हैं, इन्हां दी इंटरसेक्शन अंदर किन्ने एलिमेंट होंगे जी, आप पूछे हुए तो कर दो कमेंट सेक्शन अंदर कमेंट किन्ने होंगे। देखो
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 4 ਹੋਣਗੇ, 5 ਹੋਣਗੇ, 10 ਹੋਣਗੇ, 20 ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣੇ। ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? 1 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 2 ਬਣੇਗਾ ਕਾਮਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ 2 2 ਕਾਮਨ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ 2 3 ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਕਾਮਨ ਬਣਨਗੇ। 2 3 2 3 ਦੋਨਾਂ ਚ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇਗਾ? 2 2 2 3 3 2 ਤੇ 3 3। ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ A क्रॉस B ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ B क्रॉस A ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦੋਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन आया सी, चलो काउंटेबल के अंदर भी क्वेश्चन आया है। आओ मैं तुहानू रिलेशन सॉरी जो आप रिलेशन वाला टॉपिक करांगे उदों तुहानू मैं समझा दांगी। क्वेश्चन तो दस देने विच सेट इज काउंटेबल। 4 सैट दिते हुए सी, पूछा सी केड़ा काउंटेबल है। ऑप्शन ए सी जी 0 ते 1, ओके। ऑप्शन बी सी जी ओपन 0 1 क्लोज्ड। ऑप्शन सी सी जी ओपन 0 1 भी ओपन। ऑप्शन डी सी तुहाडे कोल 1 4 9 16 इस तरह ना। हाँ जी, इन्ना अंदरों केड़ा काउंटेबल सैट है? हुण जिन्हां नूं पता है ना, जिन्हां ने पढ़िया होया सैट चंगी तरह उन्हां नूं आंदा होएगा। ठीक है, उन्हां नूं इसदा आंसर आंदा होएगा। देखो उन्होंने पूछा केड़ा काउंटेबल है। हुण देखो हर एक इंटरवल अनकाउंटेबल होंदा है। इंटरवल अंदर अनलिमिटेड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, तो जिन्ने भी इंटरवल दिते वो तो सारे कैंसल हो गए, ये तो काउंटेबल है ही नहीं। आ सैट जो काउंटेबल है, हुण तुसीं कहोगे मैडम इहदे अंदर तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, तो याद रखियो जी, याद रखियो सैट ऑफ नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर में एक गल याद रखनी है तुसीं, नैचुरल नंबर का सैट की है जी काउंटेबल है। आ गल याद रखनी है तुसीं दिमाग च। नैचुरल नंबर का सैट की है जी काउंटेबल हुंदा है, तो एक काउंटेबल सबसैट का, एक काउंटेबल सैट का सबसैट भी काउंटेबल हुंदा है, एक काउंटेबल सैट का सबसैट भी काउंटेबल ही हुंदा है। इसलिए अपने कोल आ सैट जिहड़ा जी काउंटेबल बनेगा। नैचुरल नंबर के सैट नूं आपां काउंटेबल सैट कहंदे आ। ठीक है जी, नैचुरल नंबर का सैट नूं आपां की कहंदे आ? काउंटेबल कहंदे आ। रियल नंबर का सैट अनकाउंटेबल हुंदा है, इंटीजर का सैट अपने कोल काउंटेबल हुंदा है, नैचुरल नंबर सैट का सैट जिहड़ा जी काउंटेबल हुंदा है। तो याद इस तुसीं की रखना है कि नैचुरल नंबर का सैट काउंटेबल है, तो उसके सारे सबसैट काउंटेबल होंगे, तो आ भी अपने कोल की बन रहा है? काउंटेबल बन रहा है। इंटरवल हमेशा ही अनकाउंटेबल हुंदा, याद रखियो। हाँ जी, आ सन जी 2017 के अंदर पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन। हुण कुछ होर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए वो भी आपां देख लेंगे। हाँ हाँ जी, लेट अस सी। द इनफिमम, मैं कैसे ना इनफिमम ते सुप्रीमम पेपर के अंदर आएगा। द इनफिमम ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। हुण इनफिमम पूछिया, ऑप्शन ए सी तुहाडे कोल 0, ऑप्शन बी सी 2, ऑप्शन सी सी तुहाडे कोल 1 ते ऑप्शन डी सी -2। तो देखो जी आ तो कैंसल ही हो गई। चलो इनफिमम पूछा सैट ऑफ पॉजिटिव। इनफिमम का की मतलब है कि उसके जिन्ने भी लोअर बाउंड ने उसके अंदर सब तो बड़ा नंबर, लोअर बाउंड का सब तो बड़ा नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का सैट की बनता 2 4 6। ठीक है, इसके लोअर बाउंड की होंगे 2 तो छोटे होंगे, पर इसके लोअर बाउंड 2 बन रहे, 0 बन रहे, इस तो छोटे बन रहे ना इसके लोअर बाउंड।
तो इसका लो सब तो वड्डा लोअर बाउंड कौन बन रहा है? 2 बन रहा है। सब तो वड्डा लोअर बाउंड कौन बन रहा है? इसका 2 बन रहा है। तो 2 इसका की है जी इनफिमम है। 2 इसका साडे कोल की है जी इनफिमम हैगा है। इनफिमम पूछा इसका इनफिमम कितना आ गया जी? 2 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन ए सी किसी जी क्लोज्ड है, ओके, दस के आई है पीछे, मैं याद रखियो वाला। ओपन है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। अपर ना आ तुहानू क्लीयर उदो होगा जो रिलेशन मैं तुहानू समझावांगी, उदों ही क्लीयर होएगा। ते डी है ओपन बट नॉट क्लोज्ड। चलो आता ऑप्शन कोई मतलब ही बननी बनती। हाँ जी, तो की होएगा मैं तुहानू दस्या भी सी, मैं तुहानू पीछे दस्या भी सी। तो देखो जी 1/n है, ठीक है। पहली ऑप्शन है क्लोज्ड। तो देखो जी 1/n अपने को सेट बन रहे हैं, ए अंदर बनेगा 1, 1/2, 1/3, ठीक है, ठीक है। तो 0 इसका की बन रहा है, एक लिमिट पॉइंट बन रहा है। लिमिट पॉइंट बारे तुहानू मैं दसांगी। 0 इसका लिमिट पॉइंट जरूर बन रहा है, लिमिटिंग पॉइंट के अंदर इसके 0 आ रहा है, पर 0 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब आ सेट क्लोज्ड नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन बी ओपन भी नहीं है, आ सेट की है जी ओपन भी नहीं है, आ सेट की है जी नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन। नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन होएगा, तुहाडे कोल याद रख लियो इनू कि आ सेट जी साडे कोल नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन हैगा है, ठीक है जी। हाँ जी, और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आए हुए डिस्कस करते हैं, देखते हैं और केड़े क्वेश्चन जो जी अपने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए हैं। हाँ जी, जरा 1/n वाला उन्हें क्वेश्चन कराया ना, 2 बार लगातार रिपीट होया, मैं दूसरी बार नहीं लिखने लगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे कोल, कहना 2 सेट है, एक सेट ए है, कहना ए के अंदर 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो कहते मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। कहते ए यूनियन बी के अंदर घट्टो घट कितने एलिमेंट होंगे? घट्टो घट पूछे जी, उन्हें वध तो वध नहीं पूछे, घट्टो घट पूछे। कुछ ऑप्शन सी इत्थे थल्ले अपने कोल, अच्छा 18 सी, तो कितने होंगे जी? 10 दो घट्टो घट पूछे। घट्टो घट का मतलब की है? घट्टो घट का मतलब है कि जेडे ए दे तीनों एलिमेंट है ना इस दे अंदर एग्जिस्ट कर जा, ठीक है, कि इस दे 3 एलिमेंट उस दे बराबर हो जाएंगे, तो आप कहांगे जी मिनिमम है। फॉर्मूले नाल भी करा देंगे, जनरली देखने से पता लग रहा है कि इसका आंसर अपने को कितना आएगा जी, कितना आएगा इसका आंसर कि किन्ने इस दे अंदर अपने को मिनिमम एलिमेंट होंगे यूनियन दे अंदर? 6 होंगे, जरा सेट वड्डा उन्ने ही होंगे। तो हम मैं दस दी किवें पता लगे कि 6 होंगे। देखो जी यूनियन के अंदर पहला जनरली देखने तो किवें पता लगता है, यूनियन के अंदर आप दोनों के एलिमेंट कंबाइन करते हैं। तो देखो जी मैंने एक गल दसो, जे ये तीनों एलिमेंट इसके वर्गे हो गए तो भी 6 तो आने ही आने ना, क्योंकि दोनों के इकट्ठे कंबाइन करने हैं। 3 एलिमेंट है तो 6 ये कंबाइन करके लिखने हैं। जे ये 3 सेम हो गए तो भी की दिक्कत है, इस वाले 6 तो आने ही आएंगे, हर हालत च आएंगे। तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। फार्मूला की कहता है जी नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ते उन्हें पूछा घट्टो घट मिनिमम पूछा, एदा मतलब आ किसके बराबर होनी चाहिए जी? एस दी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ताई मिनिमम होएगा। एदा मतलब ए यूनियन बी मिनिमम कदों होएगी? जदों आ की होएगी मैक्सिमम होएगी। ए इंटरसेक्शन बी, इन्हां दोनों के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट सेम हो सकते हैं? मैक्सिमम तो 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 तो वध एलिमेंट नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर 3 हो गए, तो हो गया जी 3 + 6 - 3, आ कितना आ गया जी? 6 आ गया। तो इस तरीके कर सकते हो, पर इस चीज़ की कोई जरूरत ही नहीं है, सानू पता ही लग रहा है, सरेआम दिख रहा है कि मिनिमम इसके अंदर 6 होंगे। मिनिमम कितने आएंगे जी? 6 आएंगे। होर क्वेश्चन जो अपने पेपर के अंदर आया हुआ है सैट नाल रिलेटेड, सेम क्वेश्चन जी अपने को कई बार रिपीट हुए हुए हैं। हाँ जी, एक अलग क्वेश्चन है, कहता एक सेट है ए, ओके, एक्स वाई है, इस तरह ने कि y बराबर 1/x है, ओके जी, तो x 0 के बराबर नहीं है, ओके जी, x इज रियल, ठीक है जी। दूजा सेट है जी बी, एक्स वाई है,
किस तरह कि y बराबर -x है तो x इज रियल। ओके तो इन्होंने पूछा की है कहता देन इन्हां विचों की होएगा। ऑप्शन ए दी हुई सी जी a इंटरसैक्शन b a दे बराबर होएगी। ऑप्शन बी सी जी a इंटरसैक्शन b b दे बराबर होएगी। ऑप्शन सी सी जी a इंटरसैक्शन b 5 दे बराबर होएगी। ऑप्शन डी सी जी a यूनियन b a दे बराबर होएगी। केड़ी होएगी जी दस दो फिर मैं दसदी हां तुहानू। तो देखो जी इस तरह के क्वेश्चन को करने ने पहले आप सेट बनाते हैं कंबाइन करके। ठीक है अपने को y की दिता है 1/x दूजे पासे y की दिता है -x दिता है ना। इतों मेरे को आ गया -x = 1/x। आप देखते हैं ना अंदर कंबीनेशन अंदर कुछ बन भी रहा कि नहीं बन रहा, कुछ सेम बन भी रहा कि नहीं बन रहा। जो सेम नहीं बन रहा तो अपन इतों ही क्लियर हो जाएगा कि कुछ नहीं बन रहा। इतों मेरे को आ गया जी x के इक्वल -1 आ गया। x की वैल्यू की आ गई जी इमेजिनरी आ गई -1 के बराबर आ गया था। x की वैल्यू क्या आ गई जी इमेजिनरी आ गई। x रियल रहा ही नहीं, x रियल रहा ही नहीं। एदा मतलब कि इन्हां दे अंदर कोई पॉसिबल ही नहीं है। इन्हां दे अंदरों कोई भी चीज़ अपने को पॉसिबल नहीं होगी। हाँ क्वेश्चन सही नहीं से पेपर के अंदर कोई ऑप्शन नहीं बन रही से यदि शायद यदि ग्रेस मिली होगी तुहानू आई डोंट नो पर मेरे हिसाब नाल इसकी ग्रेस मिली होगी। हाँ जी तो आसन जी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन हुण मैं तुहानू कुछ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जिहड़े जी करा देने ताकि तुहाडी थोड़ी जी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है एक थोड़े जे क्वेश्चन कर लेंगे आपां वेन डायग्राम वाले। हाँ जी ज़्यादा नहीं करते 2-3 कर लेने ताकि तुहानू सिर्फ तरीका आ जाए कि असीं वेन डायग्राम नाल क्वेश्चन नू किवें सोल्व करना है। जे पेपर दिन अपन कोई क्वेश्चन आ भी गया तो उसनू हल करने का तरीका की है। लेट अस सी। हाँ जी क्वेश्चन है चलो एक पहला तुहानू थोड़ा जिहा ना लंबा जिहा क्वेश्चन पा दिए उस तो बाद छोटे पहला लंबा पा देने तो थोड़ा तुहानू डरा देने। पूछा है द वैल्यू ऑफ देखो तुसे यूनियन वाले फार्मूले रटना छड़ दो सिर्फ वेन डायग्राम सीख लो। वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन ए दिता है जी बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ओके ऑप्शन बी दिता है जी बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ऑप्शन सी दी हुई सी जी बी इंटरसेक्शन सी ते ऑप्शन डी सी जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं की करांगी मैं बनाया डायग्राम कुछ टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा ही बन गया। मेरी ड्राइंग ते वाल ना जाया करो ड्राइंग के अंदर महान है। ठीक है कुछ ज़्यादा ही सोहनी है एवं कोई अवार्ड अवूर्ड मिल जूगा मैनू। ओके जी वो आप नहीं लेना। हाँ जी आ सेट है जी ए आ सेट हो गया जी बी आ सेट हो गया जी सी। ठीक है ए बी सी हुण की करे ए यूनियन बी यूनियन सी ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर किहड़े एलीमेंट आ जाएंगे आ सारे आ जाएंगे। ओके जी आ सारे आ गए ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर। फिर इतों की चाहिए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट चाहिए। बी कंप्लीमेंट के अंदर किहड़े एलीमेंट होंगे मैं रेड कलर नाल कर देनी है इंक का कलर चेंज करके। देखो हुण तुसीं पहली बार कर रहे हो तो टाइम लगेगा अदरवाइज तुसीं ना पेपर के अंदर बहुत स्पीडली डायग्राम बना लोगे। बी कंप्लीमेंट के एलीमेंट किहड़े आएंगे जी एस तो बार वाले एस रेड रीजन तो बार वाले सारे किस दे अंदर आएंगे जी बी कंप्लीमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है आ सारा बी कंप्लीमेंट हो गया कोई डाउट। एस तो बार वाला इन्हों मैं डार्क कर देनी। फिर अपन सी कंप्लीमेंट चाहिए सी कंप्लीमेंट लिए देख लेने सी कंप्लीमेंट के अंदर केड़े एलिमेंट आएंगे जी एस जिस तो बाहर वाले एस सेक्शन तो बाहर वाले सारे सी कंप्लीमेंट के अंदर आ गए। आ सारा सी कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है फिर की है जी ए दे अंदर केड़े एलिमेंट आएंगे एस पार्ट दे अंदर वाले आ गए अपने को ए दे अंदर वाले। हुण इन्हें पूछा कि इन्हां तिन्नां दी इंटरसेक्शन हुण मैनूं दसो ब्लू ब्लैक ते रेड तीनों कित्थे कॉमन ने
जिथे ब्लू भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, तो वह पार्ट है जी इन्ना पार्ट जिस दे अंदर ब्लू ब्लैक ते रेड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्ना पार्ट ओनली ए वाला, जिन्हों आप की कहते हाँ ओनली ए वाला आ पार्ट हो गया इन्ना जिसके अंदर ओनली है। एदी इंटरसेक्शन करनी है यूनियन नाल, मतलब कि एदी इंटरसेक्शन जेड़ा आप येलो पार्ट किया सी तो येलो पार्ट दे नाल इंटरसेक्शन करन ते भी सिर्फ इन्ना ही पार्ट बचेगा ना, येलो पार्ट दे नाल इंटरसेक्शन करन ते कॉमन दे अंदर तो इन्ना ही पार्ट बचेगा, इन्ना ही बचेगा। तो आ की बन रहा है ओनली ए वाला बन रहा है, केड़ी ऑप्शन बन रही है जी ओनली ए वाली बन रही है। हुण इहदे अंदरों ऑप्शंस दे अंदर देखो कि ओनली ए वाली केड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर अपने कोल ओनली ए वाली केड़ी ऑप्शन बन रही है। तो देखो जी दोबारा डायग्राम बना लेने इत्थे, आ ए है, आ बी है, आ सी है, ठीक है जी। हुण देखो बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, तो बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट नाल ओनली ए नहीं बनना, बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट आ बी सी, आ सी सी, ठीक है। बी दे एलिमेंट, बी दे एलिमेंट करांगे तो ए वाला हिस्सा आ वाला आएगा, सी कंप्लीमेंट करांगे तो सी दे बाहर वाले आएंगे, पर आ ए वाला हिस्सा नहीं आएगा तो आ ऑप्शन तक कैंसिल होगी। दूसरा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, हुण बी कंप्लीमेंट ते सी कंप्लीमेंट दी इंटरसेक्शन करके देखो तुसी, पहला मैं बी कंप्लीमेंट नूं ब्लैक कर दिन्नी आ, मतलब बी कंप्लीमेंट नूं ग्रे छड़ दिन्नी आ सारे बी कंप्लीमेंट दे अंदर आ गए बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। फिर सी कंप्लीमेंट देख लेने, सी कंप्लीमेंट के अंदर केड़ा हिस्सा आ जाएगा जी, आ रेड तो बाहर ब्रेक है जो आ गया, तरह की इन्हां दी इंटरसेक्शन करनी है, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इन्हां दोनों का सांझा हिस्सा, तो सांझे हिस्से के अंदर अपने को आ पार्ट बचेगा, तो इसका आंसर अपने को बी बनेगा। वेट आप इतनी कोई गड़बड़ करती, चलो देखते हैं दोबारा क्वेश्चन की सी। चलो इन्होंने मैं वेन डायग्राम थोड़ा जिहा लेंथी होगा तो सिंपल तरीके नाल करा दिन्नी आ, डायग्राम के अंदर शायद मैं कोई मिसटेक करती लिखन के अंदर। चलो हाँ जी क्वेश्चन की सी, क्वेश्चन सी ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट सी, है ना। पूछा सी किस दे बराबर है, पूछा सी आपां नूं कि इस दी वैल्यू तुहाडे कोल किस चीज़ दे बराबर आ रही है, आपां दसना सी इस दे अंदर। हाँ जी तो देखो जी पहला आपां इहनूं देखदे हां की बन रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, अपने को सीधा सीधा की बनेगा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट ही बनेगा, क्योंकि ये नाल कैंसल हो जाऊगा। इसका आंसर देख लो जी, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बनूगा, इन्ना बड़ा मैं प्रूफ कराऊंगी लेंथी हो जाएगा, मैं इसनूं तुसीं करके देख लियो, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट ही बनूगा इसका आंसर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसनूं भी होल्ड रखते हैं, कल तुहानूं दोबारा मैं इसनूं डायग्राम नाल ही सोल्व करा दांगी, ठीक है जी। कल इसनूं आपां फिर तो डायग्राम नाल जिहड़ा जी सोल्व करने की कोशिश करांगे, डायग्राम नाल ही सोल्व होएगा, ईजीली भी करांगे। इन्हूं एक बार छड्ड दो, आपां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी क्वेश्चन की है, कहता एक क्लास इज 175 स्टूडेंट, कहता एक क्लास के अंदर 175 स्टूडेंट ने, ठीक है जी। उन्होंने अंदरों कहता मैथ के अंदर 100 ने, फिजिक्स दे 70 ने, केमिस्ट्री दे 40 ने, मैथ एंड फिजिक्स दे 30 ने, मैथ एंड केमिस्ट्री दे 28 ने, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे 23 ने, ते मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तिना वाले कहता 23 ने, ओ सॉरी 18 ने, तिना वाले 18 ने। तो पूछा है मैथेमैटिक अलोन वाले किन्ने ने, मैथेमैटिक अलोन वाले किन्ने ने। तो देखो जी आ क्वेश्चन हुण एवें तुसीं करोगे ना, नंबर कढ़ के यूनियन कढ़ के, मैं एको ही क्वेश्चन करावांगी हुण तुहानूं आ वाला,
इस तरीके के बाकी क्वेश्चन आपे कर लियो। मैं काफ़ी लेंथी डाटा लेके सब तो लेंथी वाला एक करा देनी आ, बाकी तुम आपे कर लियो। आ समझ आ गया तो उन्होंने बाकी भी समझ आ जाएंगे। हाँ जी, आप इन्हों करते हैं सोल्व। ओके, आप नैक्सट पेज पर करते हैं। मैं बनाए 3 डायग्राम, आ मैथ है, आ फिजिक्स है, आ केमिस्ट्री है। आप कढ़ना आ वाला डाटा कला मैथ का, ठीक है जी, कला मैथ का डाटा कढ़ना है। हुण मैनू गल दसो आपने किन्ने किन्ने स्टूडेंट कहे सी, उन्हें आपां कहे सी स्टेटमेंट के अंदर। हाँ जी, टोटल क्या सी 175 है। ओके, टोटल सी जी 175। मैथ दे सी अपने कोल 100, फिजिक्स दे सी 70, केमिस्ट्री दे सी 40, तिना दे कॉमन सी 18। पहला तो आ 18 आ गए, ठीक है। फिर सी अपने को मैथ एंड फिजिक्स दे 30, मैथ एंड केमिस्ट्री दे 28 ते फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे सी 23, ठीक है। तो देखो 18 इत्थे आ गए, एदा मतलब मैथ एंड केमिस्ट्री 28 सी, 28 चो 18 इत्थे के पिछे किन्ने बचे जी, आ हो गए 10। ओके, फिर देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे किन्ने 23 चो 18 आ गए, इत्थे किन्ने बचे जी 5। फिजिक्स दे सॉरी मैथ ते फिजिक्स दे 30 सी, 30 चो 18 इत्थे आ किन्ने बचे जी 12 बच गए। हुण मैथ दे टोटल किन्ने है 100 है। 100 दे अंदरों 12 18 ते 10 ये तीनों अमाउंट तो कॉमन दे अंदर आ गई, ये तो आप लेनी नहीं। तो 100 दे अंदरों इन्हां तीनों का जोड़ घटा दो, किन्ना बनेगा जी 18 ते 12 30 ते 10 40, 100 तो 40 घटा दो, किन्ने आएगी जी 60 आ जाएंगे। किन्ने स्टूडेंट है ने जिन्होंने को लोन मैथ है, किन्ने आ गए जी 60 स्टूडेंट्स को सिर्फ तो सिर्फ मैथ सब्जेक्ट है। इस तरीके आप सवाल करना है, कोई फार्मूला नहीं लाना, किते नहीं पढ़ना, आंसर आ गया जी 60, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, आ ही गया होगा जी, आ ही जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी तरह प्रॉपर्टीज है ना, वो भी इसी तरह कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी इस तरीके नाल किते जा सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन लेंदे आ, वो तो आप थोड़ा बड़ा ले लिया सी, कोई सिंपल जिहा क्वेश्चन लेंदे आ। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल क्वेश्चन है ए ते बी कोई दो सैट है, कहंदा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किस दे बराबर होएगी। ऑप्शंस दिते हुए ने जी, ए माइनस बी दे बराबर होएगी, बी दे बराबर होएगी, ए दे बराबर होएगी, या ए इंटरसेक्शन बी दे बराबर होएगी। आ पूछा है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पूछे है, तो आ मैं ले लिया सेट ए, आ ले लिया बी, ठीक है, समझा। हाँ जी, हुण अपने कोल आपां पहला देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बन रहा है, आ वाला हिस्सा बन रहा है, आ बन रहा है मेरे को ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो ए माइनस बी वाला केड़ा बनेगा, वो वाला बनेगा जिस दे अंदर जेड़े ए दे अंदर बी नहीं है, आ इन्ने लाइना वाला, आ डब्बियां वाला, आई बनेगा ना। जेड़े ए दे अंदर जेड़े बी दे अंदर एलिमेंट ए दे एग्जिस्ट नहीं करते, वो की होएगा ए माइनस बी होएगा। हुण इन्हां दोनों दी यूनियन कर दो, एस ते एस दी यूनियन कर दो, तो आ सारा हिस्सा आ गया। आ सारा हिस्सा किहनूं रिप्रेजेंट करिया, ए नूं करिया, तो आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर सी, ए तुहाडा आंसर आ गया। इस तरह प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी इत्थों देखे जा सकते हैं। जिहड़ा आपां पहला क्वेश्चन कीता सी ना, उहदे अंदर शायद मैं कोई मिस्टेक करती सी डायग्राम बनाने अंदर, वो तुहानूं मैं डायग्राम बना के दस दांगी, ठीक है, वो तुहानूं डायग्राम बना के आपां एक्सप्लेन कर दांगे कल दे क्लास के अंदर। तो आ सी जी वेन डायग्राम क्वेश्चन करने। अज मैं तुहानूं इन्ने क्वेश्चन करांगी, आप मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन करांगे, पर जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो आप रिलेशन ते फंक्शन के नाल जोड़ के कंप्लीट कर लांगे ना, उसके बाद आप एक MCQ की सीरीज लावांगे, जिस दे अंदर आप इसके वेन डायग्राम रिलेटेड, प्रॉपर्टी लॉज नाल रिलेटेड जिन्ने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस करांगे। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर ते चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। उम्मीद करती हूँ तुहानूं अज दा सैशन पसंद आया होगा। जो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप ते थैंक्स कह के जरूर जाओ। उस तो इलावा जे कोई टॉपिक नहीं समझ आया, कितने डाउट रह गया, तो वो कमेंट सेक्शन अंदर तुसीं कमेंट भी करके जाओ, ठीक है जी। बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम। हैव ए नाइस डे।